that we have to start this one digital to analog conversion. We started the last class about the modulation in the concept of modulation and demodulation. And now what we have to do here, we have to perform the modulation, we have to perform the demodulation, but what we have to convert the digital into the analog. That means, if speaking about the computer does not have a signal. The computer has data, and that data is in form of ones and zeros. So that ones and zeros has to be converted in analog form. वो जो 10 अपना जो रहेगा उसको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालॉग फॉर्म, बिकॉज मोस्टली द ट्रांसमिशन लाइन्स जिसपे से अपन डाटा सेंड करने का जिसपे अपन बोलते हैं, that line is analog, not digital. So we have to do the both the thing. We have to perform the modulation also, and we have to convert that digital signal into the analog. We can see in the figure, ये sender है, that means our computer is there, and the computer having a data 101010. And what we do, we take a modulator. जो modulation करेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, modulator. That means our data has been given to the modulator. Then what the modulator will do, it will convert it to the analog signal. This analog signal is sent through a link, whatever maybe the link is wire, wireless, whatever link is there. At the receiver, first you have to connect the modulator. Now what the modulator will do, the modulator will take this analog signal and then convert into the digital one, and this digital data is given to the receiver. So we have to deal with this one only, digital to analog. जो अपने में जो syllabus में है वो सिर्फ ये part है, digital to analog, and we have to see the types. And this one having three types. The first is called amplitude shift keying, इसको short में ASK बोलेंगे. Second is the frequency shift keying, short FSK, and the last one is the phase shift keying, that is a PSK. So these three things we have to study in the today's topic. You can see here. Digital to analog conversion having how many types? Three types: amplitude shift keying ASK, frequency shift keying FSK, and phase shift keying PSK. And if we combine the both, that is ASK and PSK, you are getting QAM, Quadic Amplitude Modulation. So the combination of this ASK and PSK will create your QAM. But what we have to do, we have to study this three one only. That is ASK, FSK, and the PSK. So we have taken the explanation. Now what we'll do, we'll just read what is written here in this paragraph. Digital to analog conversion is the process of changing one of the characteristic of analog signal based on the information of digital signal. So what we are doing now? So what we'll do, we'll change. Will change means the modulator will do this thing. We are not doing this thing. The modulator is doing this thing. And what is the process of changing one of the characteristic of analog signal? जो analog signal रहेगा उसे characteristic क्या करेंगे, change करेंगे. And what is the characteristic? The characteristic consists of amplitude, frequency and phase. कभी एक सिग्नल की बात करेंगे तो सिग्नल में क्या रहता है, सिग्नल में तीन चीज रहती है, एक एम्पलीट्यूड रहता, फ्रीक्वेंसी रहती, और एक रहता फेज. किसी एक चीज को क्या करते, चेंज करते. तो एएसके में क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे, एफएसके में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, और पीएसके में क्या करेंगे, फेज को चेंज करेंगे. Figures show the relation between the digital information, digital to analog modulation process and the result analog output. ये जो फिगर है इसका एक्सप्लेनेशन अपन देखें, पहले डिटेल देख चुके हैं. इसमें ऊपर पैराग्राफ में सब उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है. A sine wave is defined by the three characteristics: amplitude, frequency, and phase. Just now we have discussed. And if you see about the wave, or you can sine wave, it is defined in three characteristics. It consists of three things. It consists of amplitude, it consists of the frequency, it consists of the phase. When we vary one of these characteristics, we create a different version of wave. So by changing one characteristic of a simple electric signal, we can use it to represent digital data. So what the concept we are doing now, we are changing any one characteristic. If we change amplitude, we are getting the first category, ASK, amplitude shift keying. If we are changing the frequency, we are getting FSK, frequency shift keying. And if we are changing the phase, we get PSK, that is the phase shift keying. Any of the three characteristics can be altered in the three way. Give us the three different mechanism of modulating digital to analog signal: amplitude shift keying ASK, frequency shift keying FSK, and phase shift keying PSK.
In addition, there is a fourth and better mechanism that is combining changing both the amplitude and the phase called quadratic amplitude modulation is called QAM. QAM is the most efficient of all these three options, and this mechanism is commonly used today. That means the best one. Speaking about the best one. So which is the best one? The best one is QM. What is QM? QM is a combination of ASK and the PSK. So got this paragraph? Any question here till now? Because we have to start this first, second, and third. If we just finish the 3.3.1, our chapter is over then. Any question? शायद आज भी क्लास रोक देना पड़ेगा, आवाज नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, और आज चैप्टर को मैं डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, नो क्वेश्चन सर। ओके, now we'll start with the first one. What is the first one? First one is a amplitude shift king. It's called the ASK. So now what is the concept? We can just see this figure. The figure is not so much good. Just wait. ये फिगर दिख रही सभी का आपको? Yes, sir. Now try to understand this one now. So this is our detailed data. 1 0 1 1 0 0 1 0 1. This is our detailed data. So what the concept is about the ASK? ASK के अंदर क्या करते हैं कि डिजिटल डाटा लेते हैं. ये A फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड. व्हाट इज द फर्स्ट वन? डिजिटल बिट सीक्वेंस. व्हाट इज सेकंड वन? कैरियर वेव. यानी मॉड्यूलेशन में क्या करना पड़ता है, अपने को हेवी सिग्नल लेना पड़ता है, उसको अपने बोलते हैं कैरियर वेव. कैरियर वेव लिए. थर्ड क्या है अपना ASK मॉड्यूलेटेड. ये आपका ASK मॉड्यूलेशन प्रोसेस हो गई है. तो इसमें ये दो सिग्नल किसको देंगे? एक सर्किट रहेगा मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर को क्या करेंगे? आप ये दे देंगे. Now what the modulator is doing? The modulator में क्या होता है कि what is changing? Amplitude is changing. इसका amplitude क्या कर रहे हैं? अपन चेंज कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन जस्ट सी दिस फिगर, जैसे कि यहाँ पर हुआ. चलिए इसको देख लेंगे. देखो यहाँ पर 1 है तो यू आर गेटिंग ए फुल 1, तो ये एज इट इज है. मगर जैसे यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड को क्या करे अपन ने? 0 कर दिए. अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 1 1 का आया. यहाँ पे एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड को 0 कर दिए. यहाँ पे फिर 1 आया तो एम्पलीट्यूड के लिए. यहाँ पे 0 है तो नो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेंजिंग दिस कैरियर वेव. ये कैरियर वेव को क्या करे अपन ने? चेंज करे. किसके हिसाब से? ये डाटा के हिसाब से. यानी 1 रहा तो एम्पलीट्यूड को लेंगे. ये जो विड्थ है, हाइट है, इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे अपन. 1 है तो एम्पलीट्यूड और 0 है तो एम्पलीट्यूड. यू कैन जस्ट सी द फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसी इज सेम. ये पूरे वेव की कभी विड्थ देखेंगे तो वेव में कोई चेंज, दैट फ्रीक्वेंसी इज सेम. और ये इन फेस चढ़ा, जैसा ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ पर ये आना चाहिए तो बराबर यहाँ पे ये आया. यहाँ पर ये आना चाहिए था, बराबर ये आया. तो इन फेस चढ़ा, ठीक है, वो अब्सेंस है, मगर इन फेस आगे क्या है? चालू है. सो दिस वेव, द थर्ड वेव इज कॉल्ड ASK. इसमें क्या कर रहे हैं? ASK के अंदर एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन किए अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू द डिजिटल डाटा. डिजिटल डाटा के हिसाब से क्या करें? उसके अंदर अपन ने वेरिएशन करें. तो सेम हैज बीन हियर. इसके अंदर से बुक में क्या किया उसने? कंप्लीट फिगर नहीं दिया. जैसे कि यहाँ पे बताना चाहिए था डाटा, और उसके बाद तो ये कैरियर वेव डायरेक्ट उसने ये बता दिया बुक के अंदर करके. मैंने आपको अलग से फिगर बता रहा हूँ. सी व्हाट इज दैट? ये 1 0 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं. ये 5 बिट है तो ये 5 करेगा. फिर 0 है तो 0 रहेगा. ठीक है, समझ में आ गई फिगर? ये जो सिग्नल हो गया इसको क्या बोलेंगे? ये बन गया आपका ASK, दैट इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग. सो व्हाट हैपन इन एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग? देयर इज अ वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड, and this variation of amplitude depend upon the digital data. And what is the concept? If there is a data, if there is a 1, we have to take the wave. If there is 0, we don't have to take the wave. And if you just see the figure, in the figure the width of all the wave is same. That means the frequency is same. The frequency does not change.
एंड इफ यू सी अबाउट द वेव इज कंटिन्यूस कमिंग इन द फेज, ये फेज इसका फेज चेंज हुआ है, जो डायरेक्शन में चल रहा था वो डायरेक्शन में बराबर वेव क्या होते रहेंगी, इसके अंदर चलते रहेंगी. दैट मीन्स व्हाट हैपन इन ASK, द एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग, द फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट एंड द फेज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. वही डिटेल उसने यहाँ पे लिखा है, अपन उसको रीड करके देख लेते हैं. In amplitude shifting, the amplitude of carrier wave is varied to create a signal element. देखो यहाँ पे क्या बताया कि एम्पलीट्यूड का चेंज हो रहा, कैरियर सिग्नल का. Both the frequency and phase remain constant while the amplitude changes. So what is changing? The amplitude is changing and the frequencies and phase does not change. Just a minute. Okay, so got this one? This figure is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we'll go to the second one now. देखो यहाँ पे फिगर बताया उसने. This is the signal 10110. This is the carrier wave and this is the modulate wave. It will be like this. This one is a signal. This one is an oscillator. Oscillator एक सर्किट होता है जो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है. This is the oscillator, signal and the mixer multiplier, and this is our digital data. This is our carrier error. You will get it like this. Now come to the second one now. What is second one? Second one is FSK, frequency shift gain. You can just see this here. What happened in FSK? FSK में क्या होगा? The frequency will change, amplitude will remain constant, phase will remain constant. यानी FSK के अंदर क्या होगा? एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा, एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं रहेगा, फेज भी फिक्स रहेगा, इन फेज चलता रहेगा, फेज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा. सिर्फ चेंज किसके अंदर आएगा? चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी के अंदर. और फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा कि 1 रहा तो फ्रीक्वेंसी पूरी रहेंगी और 0 रहा तो यहाँ फ्रीक्वेंसी थोड़ी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी. यू कैन जस्ट सी दिस वन. तो यहाँ पे 1 है, यू कैन जस्ट सी द फ्रीक्वेंसी इज हाई. विड्थ कम है मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है. यू कैन जस्ट सी इट इज 0, ये 0 है. यू कैन जस्ट सी द फ्रीक्वेंसी, द विड्थ इज लार्ज, विड्थ इसकी बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी इज लो. देन दिस वन इज 1, दिस वन इज 1, दिस वन इज 1. 1 के लिए देखो यहाँ पे 0 है, 0 के लिए बढ़ गई. इफ यू सी दिस वन, ये कभी फिगर देखेंगे, ये फिगर को बोलते हैं कि ये बिट रेट 5. बिट रेट 5 मतलब इसके अंदर 5 बिट्स आएंगे. व्हाट इज 5 बिट? 1 0 देन 1 1 0. ये 1 0 1 1 0 का है. यू कैन सी द मार्किंग है, यहाँ मार्किंग दिख रही है, यहाँ पे एक मार्किंग है, ये 1 का है, ये 0 का है, ये 1 का है, ये 1 का है, और ये कितना हो गया? 0. टू ड्रॉ द कंप्लीट फिगर. कंप्लीट फिगर कैसे ड्रॉ करना चाहिए? कंप्लीट फिगर ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, ये वाले फिगर ऐसे होना चाहिए. यानी फर्स्ट शो ईयर जो भी बिट्स बताना चाहते हैं, देन शो द कैरियर वेव
और इसमें से डॉटेड मारना चाहिए, जैसे कि ये फिगर में कैसे डॉटेड मारा उसने, तो वैसे यहाँ पे डॉटेड मारना चाहिए। इसकी भी फिगर ऑनलाइन मिलेंगी। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, तो दिस वन इज गुड, ये फिगर भी अच्छी है। सीरीज 1101101, ये हायर फ्रिक्वेंसी है। देखो यहाँ पे 1, ये 0 है, विड्थ बढ़ गई, 1 है, विड्थ करीब में है, 0 है, विड्थ दूर हो गई, 1 है, विड्थ क्या हो गया इसमें करीब आ गई। मैनी फिगर्स आर देयर, यू कैन सी दिस फिगर, ये फिगर अच्छी है। So got this figure, फिगर दिख रही है ना क्लियर? Yes, sir. Okay, coming back to here now. So what about this one? FSK clear हो गया? So what happened in FSK? Amplitude is constant, phase is constant. What is changing? Frequency is changing. And what frequency? How frequency is changing? The frequency is changing according to data. As the data is there is a variation in the frequency. और ये आप कुछ भी ले सकते हैं यार, जरूर नहीं कि 10110, आप जो भी लो उसके हिसाब से वेरिएशन करो। जहाँ पर 1 रहेगा वहाँ पे फुल सिग्नल लेंगे, जहाँ पे 0 रहेगा उसकी विड्थ बढ़ा देंगे। यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ डाटा, कितने बिट के आप ले सकते हैं। इन दिस फिगर डाटा इज ऑफ 5 बिट, 10110। you can take the data of 5 bit, 6 bit, 7 bit, there is no problem because it's just an example. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि बुक में दिख रहा है जैसे फिगर को याद करना, कहाँ बड़ा कहाँ कम हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड बेटर पे ड्रॉ द फिगर लाइक दिस, द फिगर शुड बी लाइक दिस बिकॉज इट शोज सम डॉट। यहाँ पे डॉटेड्स कैसे मारे हुए, यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे कैसे डॉटेड्स है, तो मेक द डॉटेड लाइक दिस। बुक के अंदर कंप्लीट फिगर नहीं है, द फिगर शुड बी लाइक दिस, फिगर ऐसी होना चाहिए कि यहाँ पर ये भी एक फिगर देखो, ये भी अच्छी, यहाँ पे देखो। So many figures are there, we can take any figure, so just figure। उसमें कैरियर ने बताया, उसने यहाँ और डिटेल बताया था। जो 1 के लिए करीब में है, 0 के लिए क्या यहाँ पे विड्थ हो रहा है। So any question in FSK then? FSK is clear? Yes, sir. Okay, now we'll come to the last one now. Here there is a figure now. 10110. See this one. Now coming to the last one, phase shift king. What happened in phase shift king? In phase shift king, amplitude will be constant, frequency will be constant, and what is the change? The change is only in the phase. and इसमें जो हाइट रहेंगी सिग्नल की, जो फिक्स रहेंगी, ये कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फिक्स है, मतलब उसका जो विड्थ है, बीच का जो विड्थ है वो भी क्या रहेगा, दैट विल, वो भी फिक्स रहेगा। फिर चेंज क्या होगा, चेंज होगा इसके अंदर फेस के अंदर, जैसे कि ये फिगर में आप देखो, वेव का देखिए एम्पलीट्यूड एकदम फिक्स है, यू कैन सी एम्पलीट्यूड इज फिक्स। इफ यू सी अबाउट द विड्थ ऑफ ए सिग्नल, सिग्नल का कभी विड्थ देखेंगे तो ये भी सेम है। अब चेंजेस कैसा हुआ है, जैसा यहाँ पे ये 1 से ये ऊपर जाना चाहिए था, ये ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे आ गया है, दैट इज अ चेंज। यहाँ पे जो चेंज दिख रहा है ना, यहाँ पे कि ये सिग्नल हमेशा देखो नीचे से ऐसा ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, मगर ये यहाँ पे 0 के ऊपर आया, अब ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर नहीं आया, ये नीचे आ गया। वाई? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द फेस, ये फेस क्या हो गया, उसका चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये नीचे आना चाहिए था, इधर चले गया, ये ऊपर चले गया, देयर इज अ फेस।
उसके बाद ये ऊपर जाना चाहिए था, किधर गया ये फिर नीचे आ गया। देयर इज अ चेंज इन द फेस, यानी 1 है से 0 में आया तो फेस चेंज हो जाएगा, और 0 से 1 आ गया तो फेस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। So we'll just see the figure, any good figure again available on the internet. Frequency shifting. देखो यहाँ पर भी ये 1 है, बराबर चल रहा था, जैसा 0 हुआ उसने चेंज कर दिया। यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस। अब यहाँ पे लंबा है तो यहाँ पे लंबा चला, फिर यहाँ पे चेंज, फिर यहाँ पे चेंज। ये कंप्लीट फिगर है। तो दिया तो सिंपल टॉपिक्स, इसमें सिर्फ याद रखना है किसमें क्या होता है, वो सिर्फ ध्यान देना है इसके अंदर। सो गॉट इट नाउ। एफएसके भी क्लियर हो गया। We'll just see the syllabus now. So we have covered digital analog conversion, ASK, FSK, and PSK. QM is not there in the syllabus, so we have covered 2 years. Just now the last chapter has been left. So next week in 3 lectures we can finish this chapter also. That is a mobile telephone system, 1G, 2G, 3G, like this telephone, internet over cable, then frequency spectrum, cable modem, and ADSL. So we can stop here now. Still you want to ask any question regarding our 3 topics, ASK, FSK, PSK? The important is the concept. आपका मेन इसके कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, बिकॉज मोस्टली योर एग्जामिनेशन विल बी इन एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू टाइप के अंदर आपको कंसेप्ट के ऊपर ही ज़्यादा क्या करना, ध्यान देना है। एफएसके में क्या होता है, एएसके में क्या होता है, और पीएसके में क्या होता है। सो एनी क्वेश्चन देन? वालेकुम सलाम। सर एफएसके में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना? देखो जो है वो चेंज नहीं होता है, अपने पास सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक पहला एम्पलीट्यूड है, दूसरा फ्रीक्वेंसी है, तीसरा फेस है। अभी बात करेंगे एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड में क्या होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है, बाकी के 2 फिक्स रहते हैं, फ्रीक्वेंसी और फेस। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, एम्पलीट्यूड और फेस क्या होगा, कांस्टेंट रहेंगे। और पीएसके की बात करेंगे तो पीएसके में फेस चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो टाइप है वो चेंज होता है, बाकी के 2 कैरेक्टर्स क्या होते हैं, चेंज नहीं होते। सिर्फ इतना एक सेंटेंस याद रखने का। यस सर। So any more question? सर आज 3 टॉपिक हुए शायद। आज 3 टॉपिक हो गए, एएसके, एफएसके और पीएसके। ठीक है, चैप्टर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीक में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और